Good morning, dear student. Become semester 3 English medium. Dear student, in our previous lectures we count the example number 8, and I hope you understood all the points how to make the calculations to preferential creditors, unsecured creditors, etc. Now, dear students, in this lectures I choose example number 9 from liquidator's accounts. Now I read the information related to our example. Ashok Limited liquidate voluntary on 31st March 2011. The balance sheet of the company on that date disclosed as under. Now liabilities 10% 2,250 preference shares of rupees 100 each 2,25,000. 1,500 A equity shares of rupees 100 each fully paid up 1,50,000. 2,250 B equity shares of rupees 100 each paid up rupees 60 each 1,35,000. 15% debenture 3 lakhs. Outstanding interest on debenture 22,500. Creditors 9 lakhs. Cash bank 82,500. Investment 3 lakhs. Furniture 1,50,000. Building 7,50,000. Machinery 1,50,000. Stock 3 lakhs. Total 70,30,500. Now additional informations. Creditors include as under Prudent Fund rupees 15,000. Income tax for the assessment year and on 31st March 2010 and 31st March 2011 is rupees 22,500 and 15,000 respectively. Bills for water and electricity rupees 15,000. Salary of 4 clerks for last 2 months at monthly rupees 7,500. Mortgage loan on investment rupees 1,20,000 and on furniture rupees 36,500. Number 3. Realized price of assets are as under. Investment 97,500. Furniture 1,05,000. Building 6 lakhs. Machinery 45,000. Stock 75,000. Number 4. Dissolution expenditure is rupees 7,500. Liquidator's remuneration is payable at 4% on amount of asset realized by him and 2% on amount paid to unsecured creditors excluding preferential creditors. All assets from the above particulars including mortgages are sold out by liquidators. From the above particulars prepare liquidators statements from receipt and payments. So dear students, how to calculate this example? So very easy. First we prepare the liquidator's final statement. You can see final account, receipt, payment. So we start on our receipt side. First we note down the cash and bank balance 80,500. Then after asset realized, so investment 97,500, furniture 1,05,000, building 6 lakhs, machinery for 45,000 and stock 75,000. Which are the fair? Here is given all the new value of our assets. So we note down here. Now, then after, here is a very important point, friends. The mortgage loan on investment rupees 1,20,000 and on furniture 37,500. So friends, very easy. You can see here investment. Then after furniture, okay. So we sold our investment 97,500 and we take the loan on investment 1,20,000. But when we sold our investment, then we collect only 97,500. This is our means we get less money to our loan. So we paid only 97,500 to our investment loan. So now this is the party secured creditors 97,500 and secured creditors for furniture. The loan is 37,500 and we sold our furniture in 1,05,000. So fully secured creditors 37,500. मैं आपको समझाता हूँ कैसे कि देखो आप यहाँ पे कि हमारा जो मॉर्गेज लोन था इन्वेस्टमेंट पर वो कितना था 1,20,000 और फर्नीचर पे कितना था 37,500. अब जब हमने अपने इन्वेस्टमेंट को सोल्व किया तब हमें इन्वेस्टमेंट के कितने पैसे मिले 97,500 और फर्नीचर के कितने मिले 1,05,000. मीन्स कि हमारी जो मॉर्गेज लोन थी 1,20,000 हम उनको कितना पे कर सकेंगे अब 97,500. उससे ज़्यादा उनको पे नहीं कर सकेंगे. और जो फर्नीचर के ऊपर हमारी जो लोन थी 37,500
उसका हमें कितना मिला 1,05,000। मीन्स कि हम फर्नीचर की लोन जो थी उसके पूरे पैसे हम उनको पे कर सकते हैं। इसलिए जिसके पूरे के पूरे पैसे हम पे कर सकते हैं, क्योंकि हमारी लाइबिलिटी 37,75,000 थी, लेकिन हमारी रियलाइज वैल्यू कितनी थी 1,05,000। इट इज मोर देन अवर लाइबिलिटीज, तो दैट कॉल fully secured creditors. And here you can see our liability is 1,20,000, but realized value 97,500. It is less than our liability, so called partly secured creditors. So fully secured creditors 37,500 and party paid secured creditors, party paid secured creditors, party paid secured creditors 97,500. Then after liquidators remunerations, so first liquidation expense 7,500, then after asset realize. तो फ्रेंड्स जो लिक्विडेटर हमें ये सब हमको सोल्ड करके देगा उस पर हमें 4% कमीशन देना है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 का हमने टोटल किया तो वो हुआ 9,20,500 और उसके 4% कमीशन, तो वो हुआ 36,900। उसके बाद हमें अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स पे भी 2% देना है। अब देखो यहाँ पे आपको बोला गया है कि 2% ऑन अमाउंट पेड टू अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स एक्सक्लूडिंग प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स। मीन्स के आपको प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स के सिवाय प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स को नहीं देना है, उनके सिवाय हमें अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को जो पे करेंगे उस पर हमें 2% क्या देना है, हमें कमीशन देना है। तो फ्रेंड्स हम यहाँ पे अभी वो फाइंड आउट करना बाकी है, इसलिए हम इसको यहाँ पे ये कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे भी हम थोड़ा सा कर लेते हैं, कितने अमाउंट में पता नहीं है। ओके, तो जब भी हमें कैलकुलेशन करनी होगी तो हम कैलकुलेशन कर लेंगे फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स हमें यहाँ पे अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को हम कितना कमीशन देंगे वो हमें फाइंड आउट करना है, क्योंकि वो लास्ट में हम फाइंड आउट करेंगे कि हमें कितने पैसे अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को पे कर रहे हैं। उसके बाद है प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स। तो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स कैलकुलेशन कैसे करनी है तो हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमें प्रोविडेंट फंड दिया गया है 15,000, उसके बाद इनकम टैक्स ये सब दिया गया है। तो चलते इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। और यहाँ पे 2 करोड़ की कुछ सैलरी की बात हो रही थी, तो चलिए इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं हम। तो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स, तो सबसे पहले प्रोविडेंट फंड 15,000, इनकम टैक्स कौन से ईयर का लेना है, हमारा बैलेंस शीट कौन सी ईयर का है तो देख लीजिए 31 2011 का। तो यहाँ पे हम जो इनकम टैक्स कौन से साल के लेंगे तो ये लेंगे, और अगले साल का क्या होगा वो चला जाएगा अपने अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स में। उसके बाद क्लर्क सैलरी, तो क्लर्क सैलरी में हम चलते हैं। तो क्लर्क सैलरी जो है वो क्या है, तो क्लर्क सैलरी सबसे पहले हम 4 मंथ्स की सैलरी फाइंड आउट करेंगे। तो 4 क्लर्क्स 4 मंथ्स और पर मंथ, तो 4 मल्टीप्लाई 7,500 यानी कि 1,20,000 और एक्चुअल सैलरी जो हम पे कर रहे हैं। तो 4 क्लर्क्स 2 मंथ्स और पर मंथ 7,500 यानी कि 60,000 और पर पर्सन 20,000 यानी कि 20,000 मल्टीप्लाई 4 क्लर्क्स यानी कि 80,000। अब इन तीनों में से जिसकी भी अमाउंट सबसे कम हो उसे हम कहाँ ले जाना है, हमें ले जाना है प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स में। तो वो कौन सी है 16,000 है। ओके, तो वो 60,000 रुपीज़ हम कहाँ ले जाएंगे हम अपने प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स में। तो 15 + 16 टोटल हमारा कितना हुआ 90,000। ओके फ्रेंड्स, तो ये क्या हुआ हमारा प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स कितने हो गए 90,000। तो हम यहाँ पे दिखा देंगे 90,000। उसके बाद डिबेंचर होल्डर्स, तो डिबेंचर होल्डर्स 3 लाख थे और उस पर आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट कितना था 20,500। तो टोटल हमारा कितना हो गया 3,20,500। अब लास्ट में अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, तो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को हमें फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी होगी। तो सबसे पहले टोटल क्रेडिटर्स कितने थे हमारे 9 लाख, तो उसमें से फुली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स 3,37,500, पार्टी सिक्योर्ड 97,500 एंड प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स 9। इन सबको हम क्या करेंगे यहाँ पे डिडक्ट कर देंगे। तो डिडक्ट टोटल कितना हुआ 2,25,000। तो अब हमारे रिमेनिंग कितने हुए 7,75,000। ओके, तो अब हम चलते कि हमारे पास इतनी कैश है कि नहीं ये देखना होगा। तो हम देख लेते हैं कि भाई टोटल सरप्लस इज इक्वल टू टोटल इनकम माइनस पेमेंट अप टू डिबेंचर होल्डर्स। तो यहाँ पे जो मैंने रेड किया हुआ है इसको टोटल करना है, क्योंकि ये हमें पता नहीं है अभी। ओके, हमें अभी मंगवाना बाकी है। तो जो रेड है उसका मैंने टोटल किया है, तो उसका टोटल हुआ हमारा 10,05,000। उसमें से मैंने
1 2 3 4 5 6 इसका टोटल कर दिया तो वो हो गया हमारा 5,91,900। तब हमारा रिमेनिंग केस कितना है सरप्लस, यानी कि 4,30,100 रुपीज़। अब यहाँ पे देखा हमने बैलेंस शीट में कि भाई यहाँ पे जो ये शेयर है अभी अनपेड शेयर है, यानी कि अनकॉल है, तो उस पर 40 रुपीज़ अनकॉल था, तो हम उसको भी क्या करेंगे, कॉलअप कर देंगे। तो यहाँ पे हम उसको कॉलअप कर लेते हैं। तो अनकॉल इंस्टॉलमेंट ऑन बी इक्विटी शेयर्स, तो 22,250 मल्टीप्लाई 40 यानी कि 90,000 रुपीज़ हमें क्या करना है, कॉलअप करना है। तो हमारा टोटल सरप्लस कितना हो गया, तो 4,30,100 प्लस 90,000 यानी कि 5,03,100 रुपीज़ हमारा हो गया। बट हमारा अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स कितना था, 7,70,500, बट वी हैव ओनली सरप्लस कितना है हमारा 5,03,100। हम इतना ही पे कर सकते, उससे आगे पे नहीं कर सकते। अब इसमें भी दो अमाउंट्स इंक्लूड है, एक कमीशन है उसका और दूसरा है अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। ओके, तो हम सबसे पहले इसका कमीशन हम कितना पे कर रहे हैं वो फाइंड आउट कर लेंगे। तो 5,03,000 के 2% तो कितना कमीशन मिलेगा, 9,864 रुपीज़। तो हम यहाँ पे उसको नोट डाउन कर लेते हैं, हमारा जो है वो, तो हमने उसको यहाँ पे कॉलअप करवा दिया। अब यहाँ पे जो इसका इंस्टॉलमेंट था बाकी हमने जो कॉलअप किया है वो भी हम यहाँ पे इसको दिखा देते हैं। अब इसका टोटल हुआ, अब इसका टोटल कर लेते हैं हम, तो 10,95,000, उसमें से 1 2 3 4 5 6 7, ये जो 7 जो हमारी है पर्टिकुलर्स को हम डिडक्ट कर देते हैं। तो जो डिफरेंस आएगा वो आएगा हमारा 4,93,236 रुपीज़। तो वो हम यहाँ पे इसको दिखा देते हैं ताकि हमारा आंसर वो हो जाए। तो ये हमारा हो गया। और अगर टाइपिंग में कुछ गलती हो तो फ्रेंड्स आप उनको बता देना। ओके, अभी यहाँ पे अपना लेक्चर्स ख़त्म कर रहे हैं। मुझे ये आशा है कि आप सबको ये एग्जाम्पल समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।